Good morning, dear students. Today we are going to discuss about one more topic of this chapter, ecosystem. The topic is ecological succession. So succession means to get success in any act, that is succession. और यहाँ पे जो बात चल रही है that is about ecological succession. So how the ecological succession is proceeding on this planet on in different areas, okay, that we are going to learn how the new and new species are adding up into new habitats that we are going to learn about in this particular topic. So dear students, ecological succession, it is a gradual, slow and predictable change in the species composition of an area leading to a climax community. So gradual, it is not all in sudden process, it is gradual and slow process, as well as it is predictable. You can make some predictions that in next stage what is going to happen. So gradual, slow and predictable change in the species composition of an area leading to a climax community. The community that is in equilibrium with the environment. Okay, तो ये definition आपको याद रखनी है. What is climax community? The community that is in equilibrium with the environment. मतलब ऐसी community अगर कहीं पे भी नया एक ecosystem develop हो रहा है, okay, तो वहां पे ultimately जो species varieties आपको देखने मिलती है, उन सभी varieties का sum up that is क्लाइमैक्स कम्युनिटी. जितने भी स्पीसीज आपको वहां पे फाइनली देखने मिल रहे हैं आफ्टर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द इकोसिस्टम, दैट इज कॉल्ड क्लाइमैक्स कम्युनिटी. जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं एक सिंपल पिक्चराइजेशन में आपको पता चलेगा दैट व्हाट इज इकोलॉजिकल सक्सेशन एज वेल एज व्हाट इज क्लाइमैक्स कम्युनिटी. जैसे आप देखो यहाँ पे यू कैन सी इन दिस पिक्चर एक्सपोज्ड रॉक्स आर देयर, और ये जो एक्सपोज्ड रॉक्स हैं वहां पे कुछ ग्रो नहीं हो सकता, लेकिन lichens and mosses are spreading over here slowly and gradually. तो क्या होगा, इन rocks का weathering process होगा, mineralization शुरू होगा because of the presence of the lichen and mosses. तो lichen and mosses are considered as pioneer community क्योंकि वो start कर रहे हैं यहाँ पे, that's why it is called pioneer community. आफ्टर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द लाइकेंस एंड मोजेस वेदरिंग हो रहा है, मतलब सॉइल फॉर्मेशन हो रहा है, क्योंकि पहले यहाँ पे सॉइल नहीं थी तो कोई ग्रो नहीं हो रहा था, लेकिन लाइकन और मोजेस की वजह से सॉइल जो है वो बनना शुरू हुई है. नाउ व्हाट विल हैपन आफ्टर दैट, एनुअल वीड्स आर गोइंग टू एस्टेब्लिश देमसेल्व्स, ओके, देन perennial weeds and grasses are going to establish, then shrubs and herbs are going to establish, then aspen, cherry and young pine forest are going to develop, and after that peach and maple broadleaf forest is going to develop. तो जहां पे पहले कुछ नहीं था वहां पे अब एक पूरा फॉरेस्ट डेवलप हो गया है, बट इट इज नॉट all in sudden, it is not only overnight process, it will take years. And how many years? It might take hundreds to thousands of the years to establish this. तो यहाँ पे फाइनली जो कम्युनिटी डेवलप हो रही है, यहाँ पे फाइनली जो एस्टेब्लिशमेंट है, अब देखो वहां पे शायद अब वो वीड्स वगैरह नहीं हो सकते हैं, ओके, पहले डेवलप हुए, लेकिन अब जो फाइनली एनवायरनमेंट वहां का बना है शायद वहां पे वो यहाँ से कुछ स्पीसीज वहां पे सरवाइव ना भी करें, लेकिन फाइनली जो स्पीसीज वहां पे एस्टेब्लिश हो जाती है, those species are known as climax community. In this, some species colonize an area and increase in number, whereas other species decline and disappear. मैंने अभी आपको बताया कि कुछ species है वो disappear मतलब के बाद में नहीं भी देखने मिल सकती है. स्टार्टिंग फेज में वो species वहां पे establish हुई थी, लेकिन उसके बाद हो सकता है कि उसमें से कुछ species है वो disappear भी हो जाए. The entire sequences of the communities that successively
change in an area are called shear. Okay. Individual transitional communities are termed seral stages. Okay. So entire sequence of the communities that successively change in an area are called shear. जैसे पहले यहाँ पे lichens and mosses आए, that is one shear. Then annual weeds, that is one more shear. Then perennial weeds and grasses, okay, one more shear. Then shrubs, मतलब ये जो भी हैं पूरे stages, okay, all these are known as shearers. और ये ट्रांजिशनल कम्युनिटीज जो इनको हम बोल सकते हैं सेरल स्टेजेस या सेरल कम्युनिटीज, यहाँ पे जो कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं, राइट, ऑल दीज आर कॉल्ड सेरल कम्युनिटीज. ओके, तो ये आप देख सकते हैं, दीज आर द सेरल स्टेजेस. ओके, द स्पीसीज इन्वेडिंग अ बेयर एरिया आर कॉल्ड पायोनियर स्पीसीज. अभी मैंने आपको बताया कि जहां पे पहले कुछ नहीं था वहां पे नए स्पीसीज डेवलप हो रहे हैं पहले, which are establishing themselves and they are being the key species, okay, so that new species can invade there. Okay, those are called pioneer species. Fine. In the successive seral stages, there is a change in species diversity, increase in number of species and organisms, and an increase in the total biomass. तो जैसे जैसे आप सेरा स्टेज आगे बढ़ते जाएंगे, obviously diversity of the organisms are going to be changed. Okay, आप देखो पहले lichens और mosses थे, बाद में weeds आ गए, फिर perennial weeds हैं, फिर shrubs and then some trees and then dense canopied trees are there. तो species भी change हो रहे हैं, biodiversity change हो रही है species के according, मतलब plants की species की सिर्फ हम यहाँ पे बात कर रहे हैं. ओके, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ प्लांट स्पीसीज चेंज हो गए, बिकॉज प्लांट स्पीसीज के साथ साथ उस स्पीसीज के ऊपर सरवाइव रहने वाले जो ऑर्गेनिजम्स है, एनिमल्स है अदर, दे आर आल्सो गोइंग टू चेंज, राइट. तो वो भी चेंज हो गए, एज वेल एज बायोमास भी चेंज होगा. और ये सिर्फ चेंज नहीं होगा, इट इज गोइंग टू इंक्रीज, क्योंकि नाउ द एनवायरमेंट इज बिकमिंग मोर एंड मोर फेवरेबल बिकॉज ऑफ द ग्रोथ ऑफ वेराइटी ऑफ द प्लांट्स. ओके, एंड अगर ऑर्गेनिज्म नंबर बढ़ रहे हैं तो ऑब्वियसली यू कैन से टोटल बायोमास इज आल्सो गोइंग टू इंक्रीज. द प्रेजेंट डे कम्युनिटीज आर ड्यू टू सक्सेशन ऑफ द मिलियंस ऑफ ईयर्स. अब देखो इवोल्यूशन में भी ये आप 10th में पढ़े हुए हैं. ओके, कांस्टेंट प्रोसेस, दैट इज इवोल्यूशन, राइट. तो प्रेजेंट डे कम्युनिटीज जो भी है, वॉट एवर यू कैन ऑब्जर्व इन वेराइटी ऑफ द बायोम्स, ओके, दे आर नॉट product of last 10, 15, 20, 50 years. Okay, they are developed because of the ecological succession which is proceeding since last millions of the years. So succession and evolution were parallel processes. अब यहाँ पे where word लिखा है लेकिन ये where नहीं are है, क्योंकि evolution is still going on, succession is also still going on. So succession and evolution, both of these are parallel processes. Okay, so there are two types of the succession. एक होता है प्राइमरी सक्सेशन और दूसरा है सेकेंडरी सक्सेशन. वेरी इजी टू रिमेम्बर. और डियर स्टूडेंट्स, नीट में इन दोनों के बारे में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं. ट्रू फॉल्स, रीजन असर्शन, इस तरह के क्वेश्चन प्राइमरी और सेकेंडरी सक्सेशन में से पूछे गए हैं. और बोर्ड में भी 2-3 मार्क्स में क्वेश्चन पूछे जाता है, डिफरेंसेस between primary and secondary succession. Very easy to remember. Okay, so let's see about this. So primary succession का मतलब क्या है? The succession taking place in areas where no living organisms ever existed. जैसे अभी लास्ट फोटोग्राफ में हमने देखा था, या जैसे अभी इस फोटोग्राफ में आप देख रहे हैं, bare rocks are there, then lichens have developed themselves, pioneer species develop हुई, small annual plants and lichens, grasses and perennial. So ये सारे pioneer species हैं.
फिर इंटरमीडिएट स्पीसीज ग्रासेस, श्रब्स एंड शेड इंटॉलरेंट ट्रीज सच एज पाइन्स एंड ऑल दिस, और बाद में शेड टॉलरेंट ट्रीज एंड लाइक ऑक एंड हिकोरी, राइट। तो ये क्लाइमेक्स कम्युनिटी डेवलप हुई है। तो कहने का मतलब ये है कि ऐसा लोकेशन जहाँ पे पहले कोई वेजिटेशन नहीं था, कोई ऑर्गेनिज्म वहां पे नहीं था, और वहां पे कुछ लाइफ डेवलप हो रही है, अगर ऐसा हो रहा है देन इट इज कॉल्ड प्राइमरी सक्सेशन। फॉर एग्जाम्पल न्यूली कूल्ड लावा, बेर रॉक, न्यूली क्रिएटेड पॉन्ड और रिजर्वायर, वहां पे जो सक्सेशन प्रोसेस चल रही है, मतलब वहां पे जो स्पीसीज डेवलपमेंट का प्रोसेस चल रहा है, दैट इज कॉल्ड प्राइमरी सक्सेशन। टू एस्टैब्लिश अ बायोटिक कम्युनिटी, दैट इज फर्टाइल सॉइल मस्ट बी फॉर्म्ड। तो यहाँ पे ऑब्वियस है कि बेर रॉक्स है, तो वहां पे इसीलिए कुछ ग्रो नहीं हो रहा था कि क्योंकि बेर रॉक्स थे, वहां पे सॉइल नहीं थे। तो बायोटिक कम्युनिटी को अगर डेवलप होना है वहां पे, ऑब्वियसली यू रिक्वायर सॉइल, एंड नॉट ओनली soil but fertile soil you require, which is nutrient rich, that you require. So primary succession is very slow process, क्योंकि पहले यहाँ पे soil थी ही नहीं. The soil has been developed by or produced by activity of the lichens and mosses and bryophytes particularly, you can say, right? वेदरिंग प्रोसेस होने के बाद यहाँ पे सॉइल ग्रेजुअली डेवलप हो रहा है. अब देखो पहले सिर्फ रॉक ही है और धीरे धीरे यहाँ पे सॉइल फॉर्मेशन का काम शुरू हुआ. जैसे सॉइल फॉर्मेशन का काम शुरू हुआ, रूटिंग प्रोसेस आप देख सकते हैं, रूटनिंग यहाँ पे स्टार्ट हुआ है एंड इट हैज टेकन hundreds of the years. So this is primary succession. Now come to the secondary succession. Secondary succession का मतलब है जहाँ पे पहले से कुछ है या था, that is and if something new is going to develop there, then it is called secondary succession. So the succession taking place in an area after the existed organisms are lost, मतलब जहाँ पहले से biotic community थी, but because of some reasons, if those communities have been lost, those organisms have been lost, and if new organisms are establishing themselves to that particular location जहाँ पे पहले कोई था in past. Okay, you can see over here there was a forest over here, लेकिन because of the forest fire क्या हुआ, पूरा forest जो उसका vegetation सभी जल गया है, right? तो obviously animals, insects, everything have been lost here. Now what will happen? सॉइल तो है यहाँ पे, तो वेदरिंग प्रोसेस की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन नए स्पीसीज पहले डेवलप करने पड़ेंगे. अब देखो सब कुछ लॉस्ट हो चुका है, एंड आफ्टर दैट सम एनुअल प्लांट्स आर ग्रोइंग देयर. ओके, grasses and perennials are going to grow there. Then grasses, shrubs and pines, young oak and hickory trees are going to grow there in between 5 to 150 years, and 150 years के बाद मैच्योर फॉरेस्ट इज डेवलप. तो ये क्लाइमेक्स कम्युनिटी हो गया. अब देखो क्लाइमेक्स कम्युनिटी और पायनियर स्पीसीज दोनों में प्राइमरी और सेकेंडरी सक्सेशन में डिफरेंस है. इन केस ऑफ द प्राइमरी सक्सेशन, पायनियर कम्युनिटीज में कौन था? मोजेस, लाइकेन वेर देयर. यहाँ पे पायनियर स्पीसीज में कौन है या पायनियर कम्युनिटीज में कौन है? डायरेक्टली यू कैन से एनुअल प्लांट्स और ग्रासेस एंड पेरियनल्स आर देयर. क्लाइमेक्स दोनों में सेम रहेगा. आप देखो क्लाइमेक्स इज कॉमन इन बोथ ऑफ देम, लेकिन पायनियर स्पीसीज या कम्युनिटी आप बोलो तो दोज आर गोइंग टू बी चेंज्ड. ओके, क्योंकि यहाँ पे वेदरिंग नहीं करना है, ऑलरेडी न्यूट्रिएंट रिच सॉइल है, तो कुछ भी यहाँ पे वापस ग्रो हो सकता है. इवन यू कैन सी द प्रोसेस इज रैपिड. वहां पे हंड्रेड्स ऑफ ईयर लिखा था, लेकिन यहाँ पे इन वेरी शॉर्ट टाइम प्लांट्स आर गोइंग टू ग्रो. For example, abandoned farmlands, burned or cut forest, land that are left that are flooded. Okay, ऐसे जो भी है वहां पे obviously सब कुछ पहले तो वॉश आउट हो जाने वाला है, बर्न हो जाने वाला है, लेकिन उसके बाद जो न्यूट्रिएंट रिच सॉइल है, इट कैन सपोर्ट द न्यू स्पीसीज वेरी सून. So since some soil or sediment is present there,
succession is faster than the primary succession. Obvious hai. Secondary succession is faster compared to the secondary succession. The species that invade depends on the nature of the soil, availability of water, etc. तो secondary succession में obvious है किसके ऊपर डिपेंड रहना पड़ेगा, तो soil का nature क्या है after a process or calamity, okay, as well as what is the availability of the water there. So secondary succession is directly affected by these factors, right? So dear students, so you can see over here ecological succession कैसे काम कर रहा है. जैसे ये एक टेरेस्ट्रियल एरिया पे इकोलॉजिकल सक्सेशन की बात की गई, राइट? और आप यहाँ पे एक पॉन्ड देख सकते हैं जहाँ पे कोई वेजिटेशन नहीं है, ओके, इनसाइड द पॉन्ड. लेकिन आप देखिए ग्रेजुअली यहाँ पे क्या होने वाला है. ओके, सम प्लांट्स हैव बीन एस्टेब्लिश्ड. ओके, स्लोली ग्रेजुअली आप देखो पूरा वेजिटेशन चेंज हो रहा है उसका. वाटर क्वांटिटी कम होती जा रही है, सॉइल क्वांटिटी बढ़ती जा रही है, एंड नाउ इट हैज बिकम इनटू एंटायरली अ डेंस फॉरेस्ट. ओके, ऐसा क्यों हुआ? ओके, सो इन सक्सेशन changes in vegetation affect food and shelter of the animals. Okay, तो ऑब्वियस है सक्सेशन में चेंजेस तो होने ही वाले हैं. It is a gradual process and new species are going to emerge out. Okay, so vegetation is going to change and it is obviously going to affect the food and shelter of the animals. The succession leads to change in number and types of the animals as well as decomposers. Okay, जैसे जैसे वेजिटेशन चेंज होगा उसके हिसाब से टाइप्स ऑफ द एनिमल्स भी चेंज होने वाला है, डीकम्पोजर्स भी चेंज होने वाला है, क्योंकि जो जिसके ऊपर डिपेंडेंट है वही वहां पे सरवाइव करेगा. पहले श्रब्स थे तो श्रब्स के ऊपर जो डिपेंडेंट रह सकते हैं ऐसे हर्बीवर्स. फिर ट्रीज है तो ट्रीज के ऊपर जो डिपेंडेंट रह सकते हैं ऐसे एनिमल्स सरवाइव करेंगे. नेचुरल और ह्यूमन इंड्यूस्ड डिस्टर्बेंसेस like deforestation, fire, etc. convert a particular seral stage to an earlier stage. तो अगर ऐसा कुछ नेचुरल कैलेमिटीज हो रही है या कोई ऐसा नेचुरल की जगह पे अगर कोई ह्यूमन डिजास्टर वहां पे हो रहा है, ह्यूमन इंड्यूस्ड डिजास्टर अगर वहां पे हो रहा है, तो ऑब्वियसली इट इज गोइंग टू कन्वर्ट अ पर्टिकुलर सेरल स्टेज टू earlier stage. Okay, they create new conditions that encourage some species and discourage or eliminate other species. अगर आपने कुछ डिस्टर्ब क्रिएट किया वहां पे, जैसे डिफॉरेस्टेशन अगर हो रहा है, तो वहां पे जो नेचुरली सर्वाइव कर रहे हैं ऑर्गेनिजम्स, ओके, वो क्या करेंगे? आइदर दे हैव टू बी लॉस्ट, या तो उनको वहां से माइग्रेट करके कोई नया हैबिटेट फाइंड आउट करना पड़ेगा, राइट? तो अगर ऐसा कोई डिजास्टरस इवेंट्स वहां पे हो रही है तो फिर सेरल स्टेजेस आर गोइंग टू बी चेंज इनटू द अर्लियर स्टेज. अर्लियर स्टेज मतलब प्रीवियस की बात कर रहे हैं, क्योंकि कंडीशन वर्स्ट होने वाली है पहले से, फेवरेबल तो होने वाली नहीं है. फेवरेबल नहीं है इसका मतलब उसके प्रीवियस स्टेज के जैसे वो बिहेव करेगा. तो प्रीवियस स्टेज में जो था, जितना सपोर्ट हो सकता था उतने को ही वो सपोर्ट करेगा इकोसिस्टम. बाकी जो स्पीसीज है दे हैव टू बी लॉस्ट. ओके, now if we are going to discuss about succession in case of the plants, so based on the nature of the habitat, plant succession is of two types. Plant में दो तरह के succession process है. एक होता है hydrarch succession and the second one is a xerarch succession. Hydrarch and xerarch succession is there. Fine. So if we are going to discuss in detail about both of this succession, hydrarch and xerarch. अब ये words वैसे आपके लिए नए नहीं है. Hydro, that is water. Xero, याद करिए, xerophytes मतलब डेजर्ट कंडीशन में ग्रो होने वाले प्लांट्स. हाइड्रोफाइट्स, राइट, मीन्स
एक्वेटिक कंडीशन में ग्रो होने वाले प्लांट्स, राइट। तो हाइड्रार्क एंड जेरार्क, इसको इस वर्ड्स के ऊपर से हमें ये तो पता चल सकता है कि वंस वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट एक्वेटिक सिस्टम्स, and in this case we are going to discuss about desert system, yeah, condition you can say. So first of all we are going to discuss about hydrarch succession. So how this hydrarch succession is taking place? Hydrarch succession, it takes place in water areas. Aquatic ecosystem में ये काम करता है. It progresses from hydric to the mesic condition. अब देखो 3 तरह के कंडीशन है, जेरिक, मेजिक एंड हाइड्रिक. जेरिक का मतलब है स्कैरसिटी ऑफ द वाटर, जहां पे वाटर नहीं है. अब अगर वहां पे वाटर नहीं है तो इट इज नॉट गोइंग टू सपोर्ट वैरायटी ऑफ द लाइफ्स, क्योंकि वहां पे वाटर नहीं है, देयर इज अ स्कैरसिटी ऑफ वाटर. देन कम टू द मेजिक कंडीशन. मेजिक कंडीशन का मतलब है इंटरमिटेंट, मतलब जहां पे सफिशिएंट अमाउंट में वाटर है टू ग्रो वैरायटी ऑफ द ऑर्गेनिजम्स, दैट इज मेजिक कंडीशन. एंड द लास्ट वन इज अ हाइड्रिक कंडीशन, जहां पे प्लेंटी ऑफ वाटर है. प्लेंटी ऑफ वाटर है तो लगता ये है कि इट विल सपोर्ट वैरायटी ऑफ द ऑर्गेनिजम्स, लेकिन डियर स्टूडेंट्स ऐसा नहीं है. ओके, सो मेजिक कंडीशंस आर मच मोर बेटर. आप देखो हाइड्रिक और जेरिक ये दोनों एक्सट्रीम एंड्स हैं. मेजिक इज इंटरमिटेंट, जहां पे वैरायटी ऑफ द ऑर्गेनिजम्स कैन ग्रो, फ्लरिश, सर्वाइव, रिप्रोड्यूस एंड दे विल एड ऑन द बायोडाइवर्सिटी ऑन दिस प्लेनेट. तो हाइड्रार्क सक्सेशन में क्या होता है, हाइड्रिक कंडीशन से मेजिक कंडीशन में ट्रांसफॉर्मेशन. जैसे हमने लास्ट वो देखा था एक स्लाइड में, जहां पे एक पॉन्ड था पहले, जहां पे कुछ ग्रो नहीं हो रहा है, वहां पे स्लोली ग्रेजुअली कुछ प्लांट्स डेवलप हुए, स्मॉल फिशेस डेवलप हुए, फिर कुछ और सबमर्ज्ड एंड ऐसे प्लांट्स कुछ डेवलप हुए विच कैन रूट. ओके, और फिर जैसे जैसे उनका सेडिमेंट्स बढ़ता गया, वहां पे सॉइल प्रोसेसिंग, वेदरिंग का प्रोसेस शुरू हुआ. अल्टीमेटली ये पूरा जो पॉन्ड है, अब वो पॉन्ड नहीं रहा है, इट हैज बिकम द लैंड. ये सॉइल बन चुका है. एंड ऑन सॉइल इट विल सपोर्ट लार्ज साइज ट्रीज एंड इट कैन ऑल्सो सपोर्ट कैनोपाइड फॉरेस्ट. ओके, और अगर फॉरेस्ट बन गया तो ऑब्वियस है कि फिर यहाँ पे वेजिटेशन तो चेंज हुआ, उसके साथ साथ एनिमल्स भी चेंज होंगे. पहले फिशेस थे, अब फिशेस नहीं. अब देखो आप लायन, डियर, टाइगर, ऐसे कुछ ऑर्गेनिजम्स को ये सपोर्ट करेगा. तो और ये पॉन्ड में से एक फॉरेस्ट बना है. तो क्या आप देखिए आपके आसपास में कहीं पे आपने पॉन्ड में से फॉरेस्ट बनने की प्रोसेस देखी है? तो ओवरनाइट तो ऐसा नहीं होगा, या विद इन 1 2 4 5 ईयर 10 ईयर में ऐसा होने वाला नहीं है. इट विल टेक मैनी ईयर्स, 100. लेकिन आपने ऐसा तो देखा ही होगा कि अगर कोई पॉन्ड है, अगर उसका केयर ठीक से नहीं किया गया तो फिर उसका वाटर इवेंचुअली कम होता जाता है. वहां पे कुछ प्लांटेशन, मार्जिनल प्लांट्स डेवलप होना शुरू होते हैं. फिर उसके मेन जो टब एरिया है उसके अंदर प्लांट्स ग्रो होना शुरू करते हैं, और फिर ये पूरा वाटर जो है वो कंप्लीटली लॉस हो जाता है, और बाद में ये पूरी प्रोसेस होना तो शुरू हो सकती है. Right, that is hydrarch succession. Now what about xerarch succession? So in case of the xerarch succession, it takes place in dry areas जहाँ पे scarcity है water की. आप देखो यहाँ पे xerarch का मतलब सिर्फ desert ही नहीं होता है, जहाँ पे कुछ ग्रो नहीं हो सकता, जैसे bare rocks वगैरह हैं. ओके, कुछ ग्रो नहीं हो रहा है तो वाटर भी वहां पे वाटर होल्डिंग कैपेसिटी नहीं है. बिकॉज आप देखो कुछ भी प्लांटेशन होने के लिए सॉइल के पास वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होनी चाहिए. वाटर होल्डिंग कैपेसिटी रॉक्स के पास भी नहीं है, और ना ही डेजर्ट की सैंड के पास है. राइट, तो इसीलिए वहां पे कुछ नहीं ग्रो हो सकता है. लेकिन अगर वहां पे सॉइल बना वेदरिंग प्रोसेस के थ्रू, तो ऑब्वियसली बाद में वहां पे प्लांटेशन शुरू हो सकता है. और उस प्लांटेशन शुरू करने के लिए अगेन एवरीवेयर यू रिक्वायर पायोनियर स्पीसीज. ओके, तो इट डिपेंड्स. हाइड्रार्क सक्सेशन में पायोनियर स्पीसीज अलग होंगे. यहाँ पे लाइकेंस, मोजेस जो है ये नहीं है.
पॉन्ड वाली कंडीशन में, और जेरार्क सक्सेशन में लाइकेन एंड मोजिस जो है दे आर गोइंग टू बिकम द पायोनियर स्पीसीज। तो इट डिपेंड्स, हाइड्रार्क में अलग तरह के स्पीसीज पायोनियर स्पीसीज बनने वाले हैं और जेरार्क में भी कुछ अलग स्पीसीज हैं वो पायोनियर स्पीसीज बनने वाले हैं। हो सकता है कि दोनों का क्लाइमेक्स कम्युनिटी डेंस फॉरेस्ट जो बनने वाला है वो कॉमन ही हो, राइट? सो hence both hydrarch and xerarch successions leads to medium water condition, mesic conditions. Okay, एक में plenty of water था that is hydrarch और एक में scarcity of water थी, लेकिन ultimately both have come to reach on the common point, और वो common point क्या है? that is mesic condition. Okay, so mesic condition is going to be developed और वहां पे जो बाद में species survive करने वाले हैं those species will be known as climax community or you can say climax species. Okay. So if we are going to discuss about primary succession on rocks, that is xerophytic habitat, ये हमें पता है. ओके, रॉक्स में मैंने आपको पहले ही बताया कि इट इज नॉट हैविंग वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, मतलब अगर वहां पे वाटर ही नहीं है, ओके, हो सकता है माउंटेन रेंज बहुत बढ़िया है लेकिन वहां पे वाटर पोरिंग भी ठीक से, मतलब प्रेसिपिटेशन भी अच्छे से हो रहा है, लेकिन जबकि उसके पास वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ही नहीं है तो वाटर इज गोइंग टू फ्लो ग्राउंड अंडरग्राउंड, ओके, ऊपर सरफेस पे रहने वाला नहीं है, तो क्या होगा? So here lichens are being the pioneer species. तो ये क्वेश्चन नीट में बहुत बार पूछा गया है. Okay, which of the following is the pioneer species for the xerophytic habitat or for the on the bare rocks or in the desert condition and all this? So lichens are being the pioneer species in this case. They secrete acids to dissolve rock, helping in weathering एंड सॉइल फॉर्मेशन. ओके, तो ये लाइकेन का काम वहां पे रहता है, राइट? लाइकेन्स यही काम वहां पे करते हैं. ओके, दे आर सीक्रेटिंग एसिड्स. ओके, दे आर सीक्रेटिंग एसिड्स टू डिसॉल्व द रॉक, क्योंकि पहले वहां पे तो क्या था, रॉक ही थे, राइट? तो उसको मिनरलाइज करना पड़ेगा एंड फॉर द मिनरलाइजेशन प्रोसेस व्हाट दे आर डूइंग, दे आर सीक्रेटिंग एसिड्स. एंड बिकॉज ऑफ दिस एसिड रॉक्स डिसॉल्व हो रहे हैं, वेदरिंग हो रहा है रॉक्स का, और उसमें से फिर बाद में सॉइल फॉर्मेशन की प्रोसेस चल रही है. देन व्हाट अबाउट क्लाइमेक्स कम्युनिटी? तो ऑब्वियस है कि यहाँ पे जो क्लाइमेक्स कम्युनिटी डेवलप होने वाली है दैट इज फॉरेस्ट. ओके, ये तो एक फॉरेस्ट ही रहने वाला है. It remains stable if the environment remains unchanged. Okay, ये क्लाइमेक्स कम्युनिटी बन गया अगर वहां पे स्टेबिलिटी हो गई एनवायरमेंट की. अगर एनवायरमेंट बार बार अपने आप को चेंज नहीं कर रहा है तो फिर क्लाइमेक्स कम्युनिटी अपने आप को बहुत अच्छे से एस्टैब्लिश करेगी. ओके, इट विल बी वेल डेवलप्ड, राइट? So lichens which are being pioneer in the xerophytic habitat, then उसमें से small plants like bryophytes, they need only small amount of the soil, ये develop होगा. Then bigger plants are going to develop, these are the intermediate plants, and then forest is going to develop which is mesophytic community. Okay, so now if we are going to discuss about primary succession in hydrarch condition, that is having plenty of water, तो वहां पे पहले पायोनियर कौन बनेंगे? तो फाइटोप्लैंक्टन्स आर गोइंग टू बी द पायोनियर. आप देखो यहाँ पे, राइट? देन इन द सेकंड स्टेज some rooted submerged plants are going to develop. अब डियर स्टूडेंट्स ये भी याद रखो कि जो जेरिक कंडीशन बोली थी उसमें और हाइड्रिक कंडीशन में व्हाट विल बी द सीक्वेंस ऑफ द सक्सेशन, इसके रिलेटेड भी क्वेश्चन नीट में पूछे जाते हैं. मतलब ये जो ऑर्डर आपको दिख रहा है ना, वो ऑर्डर आपको याद रखना है. ओके, तो फाइटोप्लैंक्टन्स के बाद कौन आएगा? तो रूटेड सबमर्ज्ड प्लांट्स आर गोइंग टू डेवलप.
Then rooted floating angiosperms are going to develop. Okay. Then some free floating plants are going to develop. Okay. After that, reed swamps are going to develop. And then marsh meadows are going to develop. Afterwards, scrubs, and then trees, which is forest and which is the climax community. तो ये सीक्वेंस आपको याद रखना है, पर्टिकुलरली एक्वेटिक के लिए भी और जेरिक कंडीशन के लिए, दोनों कंडीशन के लिए आपको ये सीक्वेंस भी, ऑर्डर भी याद रखना पड़ेगा. और ये सभी क्या है, शेयर्स हैं, ये हमें पता है. ओके, दे आर कॉल्ड शेयर्स, राइट. सो विद टाइम द वाटर बॉडी इज कन्वर्टेड इनटू लैंड एंड वहां पे पूरी बायोटिक कम्युनिटी जो है वो चेंज हो जाएगी, ए बायोटिक फैक्टर्स भी चेंज हो जाएंगे, राइट. And climax community is a dense forest. So dear students, we have discussed one of the most important part of this chapter, okay, and really very interesting part of this chapter. Okay, I hope you have enjoyed today's lecture. If you have any doubts, any queries, questions regarding today's session, okay, please call me. Okay, solve your doubts, okay, with regular lectures itself. Okay, fine. So have a nice day and stay safe.